Now that the dust settling down on the West Bengal Legislative Assembly elections, with BJP achieving a landslide victory, the question that the sports fraternity wants to ask is, what sort of impact will it have on sports here in the state? Can things get better from here on, or what could be the way ahead? With BJP coming into power, we might see a synergy between the state associations and the national bodies. In this video, we tried to reach out to sports administrators as to what they think this change of regime could do for sports here in Bengal. Let's listen to what they say. We are currently with the former senior vice president of All India Football Federation and currently the chairman of Indian Football Association, Subroto Datto. Subroto da, uh, how do you look at this change in regime and how will it affect the sporting scenario in the state of West Bengal? Well, I am an apolitical person, but I welcome the change if the change is for good. And I would expect that this new government would be a facilitator of sports in our state. They would help uh, to develop the required infrastructure for sports uh, because other than cricket, no other sport can afford its own infrastructure. And as a facilitator of sports, uh, they would assist all the associations to grow, especially football, since I belong to uh, football administration. So, expecting a lot from the new state government. Uh, because the new government should come up with new ideas, uh, new energy, and uh, I feel that sports in Bengal would develop. And since football is the religion of the state, it transcends all demographics, and it's the opium of the mass in our state. So, football would get its due importance, and looking forward uh, a lot uh, from this new government. What would be your expectations in terms of whoever is appointed as a sports minister? Well, first of all, uh, that person should be a good sports administrator. Okay, because and he should really have the love for sports. Okay, and but I feel all Bengalis love sports, and if he is a good administrator, he would be able to organize things in a much better way, and he should also take the advice of the top sports administrators of the state, so that uh, and you see, there's one misconception that good players are good administrators. They may not be good administrators. Okay, and good administrators may not be a player. Okay, so those who have proven track record in administration, sports administration especially, they should be involved. Advice should be taken from them. There should be a body to look after sports in Bengal, not the minister only. Of course, the minister's involvement is there on a daily basis, is required in a daily basis. Um, and This body should look after all the relevant sports discipline of the state. Okay, because as I said, uh, Bengal Bengal has the potential to be known as a sporting state, not only in our country but abroad also, beyond borders also, beyond the boundaries of our country. When you talk about Bengal Hockey Association, it's perhaps the oldest hockey association in the country. And believe it or not,
During the tenure of the previous government, there were only two astroturfs, and that too after a long, long struggle. And with me to talk more about it and how does it feel this change of government will help give us so as to give a boost to hockey in Bengal, I have none other than the Secretary of Bengal Hockey Association, Istiaq Ali. Istiaq ji, how do you see the change in regime and related to it, how do you see the sports as a whole in Bengal? I welcome the new governments for the BJP. फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी गवर्नमेंट्स का एक है कि खेलो इंडिया पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर ऑल बंगाल में ऑल इंडिया में चलाए हैं, जिससे उड़ीसा, झारखंड, आज हरियाणा जो हमारे यहाँ फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है इस ओलंपिक्स में सारे मेडल्स वहाँ के लोग लेके आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ये होगा, जो चीज़ हमारा एकदम स्टॉप हो गया था ऑलरेडी। आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि लॉन्ग 45 ईयर्स के बाद हमको एक एस्ट्रोटर्फ मिला। 3 जनरेशन हमारी खत्म हो गई। 3 इज अ लॉन्ग 3 जनरेशन इज द वन विदाउट एस्ट्रोटर्फ। 28 ओलंपिक मेडल्स इन द बंगाल। कोई भी स्पोर्ट्स में इतना मेडल्स है नहीं। आप समझ लिए हिंदुस्तान को लेस्ली क्लोडियस, गुरबख्श सिंह, वीर बहादुर छेत्री जो आपके दार्जिलिंग के ही थे, यहीं के पैदाइश हुई, यहीं से बड़े हुए, जिससे लॉन्ग टाइम जो है मानो का हुआ। अब केशव दत्त, जसवंत राजपूत, सब ओलंपिक, जोगिंदर सिंह इज द 2 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 4 ओलंपिक मेडल्स इन द वीर बहादुर मतलब लेस्ली क्लोडियस। आप समझ लीजिए कि जनता ध्यानचंद से भी ज़्यादा उनको अवार्ड्स, उनको जो है मेडल्स मिला है। मगर हम चक्कर है कि अपने हॉकी को ऑलरेडी जो है ग्रास रूट पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको स्टार्टअप नहीं मिला, इसलिए हम आज हॉकी के बहुत पोजीशन वगैरह हमारे 45 साल के बाद 3 जनरेशन हमारी खत्म हो गई। समझ लीजिए गुरबख्श साहब लोग खत्म हुए, हम लोग एज ए प्लेयर एज ए हॉकी प्लेयर से हम लोग हो गए 3rd जनरेशन हमारे कहते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमको लास्ट ईयर जो हमको एक 2 एस्ट्रोटर्फ मिला जो है, एक डुमर जिला में है और एक जो है हमारा पे सॉल्ट लेक में है। 1 ईयर के बाद जो है हम लोग सिर्फ बटन कप में उसमें प्लेइंग किए, जिसको एस्ट्रोटर्फ की सर लाइफ इज़ द 6 या 7 ईयर्स अगर मानो कंट्री वगैरह। मगर 1 ईयर्स के बाद जो है उसमें हमको प्लेइंग करने को होता। अभी प्रीमियम लीग के 2 मैचेस हम बहुत मुश्किल से करने पाए इस पे। अगर बच्चों को आप ग्रास रूट में खेलने नहीं देंगे, आपको टर्फ नहीं मिला, टर्फ की हॉकी हो गई है, अब जो है ग्रास की हॉकी है नहीं आपके पास जो है, तो आपके बच्चे ग्रास रूट में जब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो आप डेवलप कैसे करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए फुटबॉल स्टेडियम में एक सिंथेटिक ट्रैक लगा हुआ, हमारे रेड रोड में, हमारे क्लब के बाहर जो है बच्चे रेड रोड के नीचे एथलेटिक्स दौड़ रहे हैं। कहाँ से आप इंटरनेशनल लेवल में और नेशनल लेवल में आप मेडल्स। So, do you see that change happening now with BJP government coming in power? ये चीज़ है, अभी जिस तरह स्पोर्ट्स बिहार में आप समझ लीजिए कभी नेशनल नहीं हुआ था, 2 एशियन हॉकी गेम चैंपियनशिप वहाँ पर हुआ, जिस तरह बिहार गवर्नमेंट आने के बाद जो है, इसलिए हम लोग एक बहुत पॉजिटिव खिलाड़ियों में एक बहुत जो है उत्साह है कि मालूम क्या होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगा, खेलो इंडिया पॉलिसी आएगी, हमारी आएगी, जिससे हम फिर बच्चों को ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो तो गवर्नमेंट बनाएगी। जो कि हमारे यहाँ खेलो इंडिया सभी पूरे ऑल इंडिया में ये चीज़ें चल रही है, मगर हमारे यहाँ बंद पड़ी हुई है जो है। तो हम चाहेंगे, बहुत पॉजिटिव है, हर प्लेयर से हमारी डिस्कस हुई, क्रिकेट प्लेयर, हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, अदर प्लेयर्स वगैरह के सभी एक बहुत पॉजिटिव है कि मालूम कि अब एक बार की इंफ्रास्ट्रक्चर हमको खुलेगा और जो है मालूम हॉकी जो कि नेशनल से हम लोग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने से हम लोग जो है डेवलप कर सकते हैं। क्या क्या बदलाव आप चाहते हो कि जब बीजेपी नाउ दैट बीजेपी गवर्नमेंट इज इन पावर, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग और क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस किया झेले हैं पिछले 2 गवर्नमेंट के अंडर? देखिए ये पिछले 2 गवर्नमेंट्स नहीं, ये हमारा 45 ईयर्स से कंटिन्यूस चलता था। जो हम लोग जैसे आज बीजेपी आया तो हम लोग भी सोचे तृणमूल आने से ये पॉजिटिव से आ जाएंगे जो है, पर गवर्नमेंट्स बहुत लॉन्ग टाइम इसको जो है वेट करते रह गई जो है मालूम है, जिससे हमारा क्या हुआ, टैलेंट बहुत निकल गया। देखिए आपका टैलेंट जो है डिस्ट्रिक्ट्स में है, डिस्ट्रिक्ट्स में टैलेंट है। एस्ट्रोटर्फ देखिए अभी बगल हमारा उड़ीसा, वहाँ 28 एस्ट्रोटर्फ है। झारखंड जैसे गवर्नमेंट वहाँ पे भी आपको 8 to 12 एस्ट्रोटर्फ हो गया। बंगाल इज द मालूम कंट्री में एक जो है मालूम स्पोर्ट्स हब था जो है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से हमारा टैलेंट खत्म हो जाए। अभी आप देख रहे हैं हमारे ग्राउंड्स में, ये बंगाल हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड में सेकंड डिवीजन का मैच हम ग्रास राउंड में खेल रहे हैं, जो मानो जो कि बच्चों को भी एस्ट्रोटर्फ चाहिए जो है मानो। सिलीगुड़ी, कूच बिहार 21 डिस्ट्रिक्ट्स इज प्लेइंग इन द हॉकी।
बॉयज़ अभी हम रिसेंटली हम आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बताएँ कि ग्रास रूट से कैसे उतारें। हम लोग ऑल बंगाल स्कूल्स 9 मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं डुमुर जिला में। 30 वुमेन्स स्कूल्स अंडर 15 जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप सोच रहे हैं हॉकी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मगर अभी भी हॉकी लोगों में है जो है। 25 बॉयज़ उसको स्कूल्स जो है मानो उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अभी हम एक ज़ोन जो है मालदा में करवाए जो है नॉर्थ ज़ोन का जो है उनको जिसमें जिसमें जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, अलीपुरद्वार ये सब दार्जिलिंग पार्टिसिपेट किए जो है। तो एक जान लीजिए एक हमारा ट्रेडिशन था हॉकी का, एक बहुत लॉन्ग टाइम बंगाल्स का जो है मानो वो एक हिस्ट्री रहा है। और बंगाल को जो है हॉकी ने सबसे ज़्यादा ऑल स्पोर्ट किसी Do, स्पोर्ट्स do में you see इतना that? डिमांड Do you see that change happening now? ये अब भी सबसे ज़्यादा हम लोग को उम्मीद कि नई गवर्नमेंट आई हुआ है तो फर्स्ट तो हमारा है कि नेशनल गेम्स होना चाहिए। इस लॉन्ग टाइम नेशनल गेम्स हमारे यहाँ नहीं हुआ। हम नेशनल्स के लिए भी जो है अभी हम चाह रहे हैं कि इस बार हॉकी अच्छा ये सबसे अच्छी चीज़ है कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम हमारा बना। लास्ट ईयर से हॉकी इंडिया एज ए दिलीप तिर्की इज़ द प्रेसिडेंट, भोला सिंह इज़ द सेक्रेटरी ऑलरेडी विजिट करके गए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिल के गए और जनता के हमारे प्रेसिडेंट सुजीत बोस से मिल के गए। ये हॉकी इंडिया हिस्सा एग्री फॉर इंटरनेशनल मैच देने के लिए वो एग्री है कि कलकत्ता जैसी जगह में इंटरनेशनल मैच होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट एग्री नहीं Last time हुई। कब हुआ? मैं 86 में 86 में इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट हुआ था, वो भी मोहन बगान ग्राउंड्स में हुआ था। तब से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। मतलब 1986 का बाद कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ क्या कलकत्ता में? कोई कलकत्ता मैच नहीं है इसलिए कि पास आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 80 के बाद जो है इज ए मैंडेटरी फॉर द एस्ट्रोटर्फ, आपके पास एक एस्ट्रोटर्फ नहीं था आज तक जो है। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो हमारे पहले सेक्रेटरीज गुरबख्श साहब थे और लोग थे कि हॉकी को आज इस लेवल में फर्स्ट डिवीजन ए ग्रुप, फर्स्ट डिवीजन बी ग्रुप, सेकंड थर्ड, फोर्थ फिफ्थ डिवीजन में उसको जो है लगातार कंटिन्यूस कर रहे हैं, जिसको हम लोग कर रहे हैं और इतने बच्चे खेल रहे हैं। आप समझ लीजिए ऑल बंगाल स्कूल्स में अभी 1200 लड़की लड़कियां खेलेंगे, मतलब आप एक समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स में अभी भी ये चाहता है। बस हमको जो है उसको देना चाहिए। अभी हम गवर्नमेंट से हम यही करेंगे, गवर्नमेंट जो है मानो को एक इंटरनेशनल मैच अभी यहाँ चाहे जिससे एक माहौल बने। अभी लास्ट हम बैटन कप किए तो आप सोच नहीं सकते, गवर्नमेंट 4 या 5000 का स्टैंडिंग का एक स्टेडियम मालूम है। अगर फाइनल में समझ लीजिए बैठने की जगह नहीं थी, इतना जो है क्राउड है। अभी भी हॉकी देखने इस बार मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का फाइनल हुआ, लोग मैच देखने आ रहे हैं, मगर आप There is interest for hockई। और इंटरेस्टेड इज लोग देखिए क्रिकेट और फुटबॉल के बाद ये सबसे इंटरेस्टेड गेम अगर कलकत्ता का है तो हॉकी है। इसलिए लोग अभी इतना खेल रहे हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से, मगर 1 ईयर से ऑलरेडी हमारा डुमुर जिला में ग्रास रूट हॉकी चल रही है, अकेडमीज चल रही है, मगर एक हॉस्टल होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि आप समझ ऑल स्पोर्ट्स को मैं जो फैनिटी को कहना चाहिए, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे सब, अगर आप हॉस्टल देखिए आज उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, पंजाब ये जो है कि वहाँ गवर्नमेंट स्पोर्ट्स हॉस्टल जो है, इसलिए गरीब बच्चे डिस्ट्रिक्ट्स में खेलते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर आप एस्ट्रोटर्फ नहीं दे सकते, उनको हॉस्टल में ले आना पड़ेगा। हमारा 2 प्रोविज़न है। एक हमारा जो हमने चीफ मिनिस्टर को प्रपोजल भी भेजा था डुमुर जलास में एक लेडीज़ हॉस्टल को, इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत गरीब बच्चियाँ रहती हैं तो उनका रहने खाने का, मगर उस टाइम इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी थी मैडम जो है मन को। तो हम लोग का सबसे मेन है कि एस्ट्रोटर्फ एक आपका सॉल्ट लेक में है, एक डुमुर जिला में है। वुमेन्स का एक सॉल्ट लेक में हॉस्टल होना चाहिए, मेंस का एक वहाँ है, जिससे क्या हुआ कि जो टैलेंट आपका डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो झाड़ग्राम, पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, ये जो आपका टैलेंट है ना वो हॉस्टल्स में रहेगा, तो डेफिनेटली 2 ईयर और 2 ईयर्स में हम नेशनल गोल्ड मेडल लेके आएंगे। तो फाइनली एज अ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल हॉकी एसोसिएशन क्या उम्मीद है जो भी नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगा? जो भी हमारा हम लोग पॉजिटिव हैं, स्पोर्ट्समैन हरदम पॉजिटिव रहते हैं। ये पिछली गवर्नमेंट से भी हम पॉजिटिव थे कि हमारा कुछ हो जाएगा। इज़ अ लॉन्ग टाइम 15 ईयर्स के बाद हमको 2 टर्फ मिला। अभी हम चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट से मुझे 2 हॉस्टल बहुत ज़रूरी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट के ग्रास रूट के बच्चे आएँ और रह के फिर बंगाल। आप समझ लीजिए मिजोरम में 1 हॉस्टल है और मिजोरम अभी जो है सेमीफाइनल फाइनल खेल रहा है वुमेन्स में जो है। तो अभी आप जो कहा अभी सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आप 2 स्पोर्ट्स हॉस्टल होना बहुत बंगाल में ज़रूरी है। So, as you have just listened to various sports administrators, the general consensus is they are hoping for a change for good under the new BJP government. Can we see Bengal emerging as the new sporting hub in the country? Only time will say.